بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے ایک خواجہ سرا کی بددعا تھی کہ میں بے اولاد رہوں گی، اور شادی کے 3 سالوں بعد بھی میں بے اولاد ہی تھی۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوتی کہ شوہر روز ایک کاغذ پر مجھے لکھ کر دیتا کہ تجھے تیرے سوالوں کے جواب اسی گھر میں ملیں گے۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ مجھے تو کوئی سوال پوچھنے ہی نہیں تھے، بلکہ میں تو اسی خواجہ سرا کی تلاش کر رہی تھی۔ جب ایک روز اسٹور روم کی صفائی کرنے لگی تو اندر سے شوہر کے پرانے کپڑوں کا بیگ نکلا۔ میں نے اس بیگ کو کھولا تو اندر موجود کپڑوں کو دیکھ کر سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ یہ تو میرا نام نور ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا خود کو ان لوگوں میں پایا جو مجھے خود سے بہت مختلف لگتے تھے۔ ہر وقت ڈھول تاشے بجتے رہتے، اور قائد اعظم کی تصویروں والے وہ نوٹ جن کے لیے لوگ صبح سے شام سخت محنت کرتے ہیں، وہ ہماری کوٹھی پر بوریوں میں پڑے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی تو اتنے ہوتے کہ کہیں جانا پڑتا تو ان پر سے گزر کر جانا ہوتا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میں نے اپنی کوٹھی میں موجود سب کو پائل پہنے تھا تھیا کرتے دیکھا تھا۔ دن کے وقت ایک ماسٹر صاحب آتے تھے جو پیانو بجاتے تھے اور ایسی دھنیں بکھیرتے کہ میرا سر درد سے پھٹ جاتا تھا، لیکن میری خالائیں مسکرا مسکرا کر رقص کی پریکٹس کر رہی ہوتی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ سخت ناپسند تھا، اور میں ہر وقت ان کی ڈھول تاشوں سے گھبرا جاتی، اور اس وقت تو میں ڈر جاتی تھی جب سب میری ماں سے لڑتے تھے یا ان کی کسی غلطی پر انہیں بے عزت کرتے تھے۔ مجھے بغیر باپ کی ناجائز اولاد کہتے تھے، اور میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور یہ مطلب مجھے بہت بعد میں پتہ چلا۔ اکثر ہی ایسا ہوتا کہ روزانہ کوٹھی کا حال مردوں سے بھر جاتا، اور پھر ملازمہ ان کے لیے چائے پر چائے بناتی جاتی، اور میری خالائیں کمرے سے یوں سج دھج کے نکلتی جیسے ان کی شادی ہو۔ میں کچن کی کھڑکی سے کھڑی محویت سے ان کے بے تحاشا حسین چہروں کو دیکھ رہی ہوتی تھی کہ وہ میرے پاس سے گزرتی، اور میں بدک کر پیچھے ہو جاتی، کیونکہ ان کی گھنگروں کی چھن چھن مجھے اکثر ڈرا دیتی تھی۔ میں اکثر یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر ایسا کیوں کرتی ہیں خالائیں جو روز دلہن بنتی ہیں؟ کیا ان کی روز شادی ہوتی ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں بہت چھوٹی ہونے کے باوجود سمجھتی تھی کہ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے سمجھ آنے لگی کہ روز دلہن کیوں بنا جاتا ہے۔ میں نے اکثر اپنی خالاؤں کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ میری ماں سے کہتی کہ اپنی بیٹی کو اس کے باپ کے پاس بھیج دو یا ہماری طرح ناچ گانا سکھاؤ، لیکن میری ماں ہمیشہ انکار کر دیتی تھی، اور پھر ایک سرد جنگ خالاؤں اور میری ماں کے درمیان چھڑ جاتی تھی، اور جیت ہمیشہ میری ماں کی ہوتی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا بہت پہلے جب میں 8 سال کی تھی تو ایک دن خالہ نجمہ کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ سو رہی تھیں۔ دن کے 2 بج رہے تھے، اور یہ ان کے سونے کا وقت ہوتا تھا، کیونکہ رات کو جب دلہن بن کر جاتی تھیں تو صبح تک ان کا کمرہ خالی ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ کب واپس آتی تھیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں اس روز چوری چھپے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ بڑی بڑی آنکھوں پر آئی شیڈ لگائے، ہونٹوں پر ہر وقت لال لپسٹک لگائے، بالوں کو سلیقے سے باندھ کر رکھنے والی وہ بہت خوبصورت تھیں، اور میں نے دیکھا تھا کہ ان کے گالوں پر سرخی آ جاتی تھی جب وہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے کسی باکس سے کچھ نکال کر لگاتی تھیں۔ مجھے بھی بے حد شوق تھا کہ میرے گال ان کی طرح سرخ اور خوبصورت نظر آئیں۔ میں نے ان کو سوئے دیکھا تو ان کی ڈریسنگ سے میک اپ باکس اٹھایا، اور نیچے کارپٹ پر بیٹھ کر جو کچھ ہاتھ میں آیا وہ اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا، اور چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے کی آواز سے نجمہ خالہ جاگ گئیں، اور مجھے یوں اپنی مہنگی مہنگی چیزوں کو یوں خراب کرتے دیکھا تو غصے سے بڑا اٹھیں، اور مجھے اٹھ کر زوردار تھپڑ مارا، اور کمرے سے باہر بٹھا کر میری ماں کو آوازیں دینے لگ گئیں۔ میری ماں جب گھبرائی ہوئی آئیں تو خالہ نجمہ نے نہایت بدتمیزی سے میری ماں سے بات کی، اور انہیں کچھ یوں کہا کہ اگر آپ کی بیٹی کو اتنا ہی شوق ہے میک اپ لگانے اور دلہن بننے کا تو اسے کام دھندا سکھاؤ۔ مفت میں ایک تو روٹیاں توڑتی رہتی ہو دونوں ماں بیٹی، اور آج تمہاری بیٹی میرا میک اپ توڑنے چلی تھی۔ اگر خود بھی دھندا نہیں کرنا اور بیٹی سے بھی نہیں کروانا تو چلی جاؤ یہاں سے، اور اگر بیٹی کو اتنا ہی پڑھانے لکھانے کا شوق ہے تو اسے اس کے افسر باپ کے پاس بھجوا دو جو اسے پیدا کر کے بھول گیا ہے۔ اماں نے نجمہ خالہ سے معافی مانگی اور مجھے لے کر کمرے میں آئیں، اور مجھے بہت غصہ کیا اور تھپڑ بھی مارا کہ میں آئندہ نجمہ خالہ اور خاص کر اس جگہ کی رنگینی سے دور رہوں۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروایا تھا،
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं भी इस कोठी पर दुल्हन बनकर ही ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी। मैं जब प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में आई तो मेरे साथ पढ़ते लड़के लड़कियों और यहाँ तक कि टीचर्स ने भी मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और उनके टॉर्चर से ही मैं समझी कि वो जिसे मैं कोठी कहकर रहती हूँ, दुनिया उसे कोठा कहती है, तवाइफों का कोठा, जहाँ रक्स की महफिलें होती हैं। मुझे समझ आ गई कि दुल्हन बन के मेरी माँ की बहनें अपने कमरों से कहाँ गायब हो जाती थीं और फिर रात भर कोठी के नीचे वाले हिस्से से म्यूज़िक की आवाज़ें आती थीं। मुझे उस दिन स्कूल में बच्चों ने बहुत टार्चर किया था और मुझसे मेरे बाप का नाम पूछने लगे, क्योंकि मेरी वल्दियत के खाने में मेरी माँ का नाम ही लिखा हुआ था। मैं स्कूल से कोठी वापस आई तो बहुत रोई थी और इस दिन मैंने अपनी माँ से बहुत बदतमीज़ी की थी। मुझे अपनी माँ से अपने बाप का नाम जानना था, लेकिन माँ के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। मैंने उस दिन अपनी सारी किताबें जला दी, यूनिफॉर्म फाड़ दिया और वो घुंघरू जिनकी आवाज़ से भी नफरत थी मुझे, मैंने पहन लिए और हाल में मास्टर जी की ढोलक की थाप पर रक्स करने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और पाँव तेज़ रफ्तारी से रक्स कर रहे थे, इतनी तेज़ रफ्तारी से कि मेरे पैरों से खून बहने लगा। उस वक्त कोठी में मौजूद हर शख्स हैरान था कि मैं क्या कर रही हूँ। माँ आकर ज़बरदस्ती मुझे घसीटकर कमरे में ले गई थीं और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए कि मैं ये सब कुछ ना करूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी भी इनकी ज़िंदगी की तरह गुजरे। लेकिन मैं जो बातें बचपन से खालाओं के मुंह से सुन रही थी और जो टॉर्चर मैंने बाहर के लोगों से सहा था, उसने मेरे अंदर गुस्सा भर दिया था। जवानी की दहलीज पर मैं अपने कदम रख रही थी और ऐसे में कोई तेज नज़र से देखे भी तो दुनिया हिला कर रख देने का दिल करता था। मैंने अपनी माँ के जुड़े हाथों के बदले इनके आगे भी हाथ जोड़ दिए थे कि वो मुझे मेरे बाप का पता बता दें, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहती थी। हम दोनों इस कमरे में बंद कितनी देर तक रोते रहे और इसके बाद मैंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। माँ ने मेरी लाख मिन्नतें की, लेकिन मेरा फैसला अटल था और मैं हरगिज़ लोगों की मज़ीद बातें सुनना नहीं चाहती थी और मैं कोठे के इस माहौल के लिए भी नहीं बनी थी। मेरी माँ को मैंने सारी ज़िंदगी कोठे की साफ सफाई ही करते देखा था और अगर यही कुछ करना था तो हम इस कोठे से दूर भी कर सकते थे ताकि एक इज्जत की ज़िंदगी तो गुजार पाते। इस कोठे पर कुछ न करके भी हम बदकिरदार ही थे। हमने वहाँ से जाने का फैसला भी कर लिया और इस रात हम निकलने वाले ही थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी पलट कर रह गई। मेरी दुनिया अंधेर नजर आने लगी थी और सब तबाह हो चुका था। मेरी माँ सीढ़ियों से गिरी और मर गई। सब खत्म हो गया। मेरा एक आम जिंदगी जीने का सपना टूट गया। मैं टूटी फूटी छोटी सी लड़की बिन माँ के अकेले कहाँ जाती, इसलिए वहीं कोठी पर पड़ी रही और फिर खाला नजमा ने फैसला दिया कि अब मैं भी रक्स सरूर की महफिलें सजाया करूँगी, जो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी ढाल मर चुकी थी। अब मेरे नसीब में एक गंदी जिंदगी लिखती गई थी, लेकिन फिर मेरी ढाल बने पियानो वाले मास्टर साहब के शागिर्द शाहू, जो एक ख्वाजा सरा थे और कोठे पर होती हर महफिल में कई सालों से ढोल बजाते थे। मैंने उन्हें अक्सर मेरी माँ की मदद करते भी पाया था और मेरी माँ उन पर बहुत एतबार करती थी, इसलिए मुझे भी उन पर एतबार आ गया और फिर उन्होंने हर कोशिश की नजमा खाला से मुझे बचाने की। उन्होंने मुझे महफिलों में रक्स नहीं करने दिया और मैं मुतमईन थी खुदा से कि माँ जैसी ढाल ले ली थी तो एक और ढाल दे दी थी। इस दिन नजमा खाला फिर से दुल्हनों वाला लिबास और जेवरात लेकर मेरे कमरे में आई थीं। आज उनके चेहरे से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी और लहजे में भी चाशनी घुली हुई थी। उन्होंने प्यार से मेरे गाल पर हाथ रखा और फिर मेरा हाथ पकड़े मुझे आईने के सामने ले आईं और मुझे कहने लगी, ज़रा खुद को आईने में देखो नूर, किस कदर खूबसूरत हो तुम, आपा से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जाने कौन था जिसके लिए हर आसाइश और रंग से मुंह मोड़ लिया उन्होंने, और वो शख्स जिसके लिए वो रानी से नौकरानी बनी कभी मंजरे आम पर आया ही नहीं। आपा को इज्जत भरी जिंदगी दी, ना तुम्हें बाप की शफकत। जाने कोई अफसर था कि मिनिस्टर, जिसकी बातों में आ गई तुम्हारी माँ और तुम अपनी माँ की बातों में आ गई। उसने कहा रक्स नहीं करना तो तुमने कह दिया कि नहीं करना। उसने अपनी ज़िंदगी ख्वारी में गुजारी और ख्वार होकर ही मर गई, लेकिन तुम ऐसा ना करो। तुम्हारा हुस्न कामिल है, जो देखेगा देखता रह जाएगा और फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अपना हुस्न यूँ ज़ाया ना करो। पहनो ये घुंघरू और हरकत दो अपने पैरों को। तुम इसके लिए ही बनी हो और कब तक ढाल की तलाश में रहोगी। अब इस ढोल की शाहू को कोठे से निकाल दिया जाए तो कौन सी ढाल बचेगी तुम्हारे पास।
तो बेहतर है अपनी ढाल खुद बन जाओ और अपने आप को मनवा लो। नजमा खाला की बातों में सदाकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। मैंने थाल से सुर्ख कपड़ा उठाया और लिबास और जेवरात उठाकर तैयार होने चल पड़ी। खाला नजमा ने फातिहा मुस्कुराहट से मुझे देखा। मैं दुल्हन बनी जेवरात से सजी जब नीचे उतरी तो सब खड़े मुझे देख रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इस मुस्कुराहट को चीरती एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ख्वाजा सरा शाहू की थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे समझाने लगा कि मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सब सुनकर नजमा खाला का पारा हाई हो गया। उन्होंने ख्वाजा सरा शाहू को धक्के मारकर कोठे से निकालने का हुक्म सुना दिया, लेकिन शाहू जाने को तैयार नहीं था और मुझे छोड़कर जाने को तो बिल्कुल भी नहीं। उसे इतने सालों में आज किसी ने चलाते हुए देखा था। वो शांत नज़र आने वाला शाहू चीख रहा था और नजमा खाला का गुस्सा तो मशहूर था पूरे कोठे में। उन्होंने शाहू के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा और कहा, लड़की ने तो तुमसे 2 बोल शफकत के क्या मांगे, तुम बाप बन गए लड़की के। मत भूलो कि बाप नहीं हो तुम इस लड़की के, बल्कि तुम किसी लड़की के क्या किसी के बाप नहीं हो सकते। जानते नहीं खुसरे हो तुम, खुसरे। बाप बनने की कोशिश ना करो। और फिर जो कुछ शाहू ने कहा था उसने वहाँ खड़े हर शख्स पर बम गिरा दिया और मेरे सर पर तो आसमान ही टूट पड़ा था जब शाहू ने कहा कि वो मेरा बाप ही है और कभी भी मुझे नाचने नहीं देगा, कभी भी नहीं। नजमा खाला उसकी बात पर हंसी थी कि ख्वाजा सरा किसी का बाप होने का दावा कर रहा था, लेकिन सबके मुंह तब बंद हुए जब शाहू के मास्टर ने इस बात की तस्दीक की कि ख्वाजा सरा शाहू मेरा बाप है। ये कैसे हो सकता था कि ख्वाजा सरा मेरा बाप है। ये कहानी शुरू होती है तब जब मेरी माँ कोठे की मशहूर रकासा थी और उसका रक्स देखने दूर दूर से लोग आते थे। मेरी माँ का हुस्न देखने वालों पर सख्ता तारी कर देता था। उन्हीं दिनों कोठे के मास्टर साहब के पास बहुत से शागिर्द आए, जिनमें से एक शाहू था जिसने अपने आप को ख्वाजा सरा जाहिर किया था, लेकिन सिर्फ मास्टर साहब जानते थे कि वो ख्वाजा सरा नहीं है। इसकी चाल ढाल अदाएं लड़कियों जैसी थीं, जिसकी वजह से इसके माँ बाप की मौत के बाद इसके चचाओं ने घर से निकाल दिया और दर दर भटकता मास्टर साहब से मिला और वो उसे यहाँ ले आए जहाँ उसे काम पर रख दिया गया और सबसे शाहू की असलियत छुपाकर उसे ख्वाजा सरा जाहिर किया और इस सच को खुद तक महदूद रखा। लेकिन ये सच एक और इंसान जो जानता था वो मेरी माँ थी। और फिर कब शाहू और मेरी माँ के बीच प्यार का रिश्ता कायम होकर गहरा होता चला गया, किसी को पता ही न चल सका। और फिर तब पता चला जब मेरी माँ के उम्मीद से होने की खबर आई और इस खबर ने सबको शशदरा कर दिया, क्योंकि इस कोठे पर रक्स किया जाता था, जिस्म नहीं बेचा जाता था। सबने खूब लानत मलामत की मेरी माँ को और पूछा कि किसके साथ मुंह काला किया है, लेकिन मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि सिर्फ वो शाहू और मास्टर साहब जानते थे कि शाहू और मेरी माँ ने निकाह किया है। लेकिन शाहू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी माँ और मुझे कबूल करता सबके सामने। और यूँ मेरी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी एक बुज़दिल इंसान की मोहब्बत में जलीलो ख्वार होते गुजार दी और मैंने बाप के होते यतीमों से बदतर ज़िंदगी गुजारी थी। मुझे उस पल और उसी वक्त अपनी ढाल बनने वाले शाहू से शदीद नफ़रत हो गई, और उससे भी शदीद नफ़रत कि इसके ख्वाजा सरा के रूप से हुई थी, जिसमें वो इतना मगन हो गया था कि वो एक मर्द की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। मैंने नफ़रत से शाहू को देखा और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। मेरे सिसकियों में आवाज़ें बाहर से आते शोर की भी शामिल थीं, जो बताती थीं कि शाहू को मारपीट करके कोठे से निकाल दिया गया है और वो ये डिज़र्व भी करता था। मैं बैठी रोती रही और फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं यहाँ इन मकार लोगों से दूर चली जाऊँगी, इन तवाइफ़ों और ख्वाजा सराओं की दुनिया से दूर। मुझे नफ़रत थी इन तवाइफ़ों और ख्वाजा सराओं से, और मैंने लिबास बदलकर उसी रात कोठे को खैरबाद कह दिया और नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। रात का अंधेरा और सुनसान सड़क पर जाती मैं अकेली लड़की। मुझे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन अब कहीं जाना तो था। और उसी वक्त एक जीप मेरे पास से गुजरी और कुछ आगे जाकर रुक गई। जीप में 2-3 लड़के सवार थे, जिन्होंने खबासत से मेरी तरफ देखा और फिर जीप को रिवर्स किया था। मैं डर कर इधर उधर देखने लगी थी। मैं बदनामी के इसी अड्डे से तो बाहर निकल आई थी, लेकिन बाहर जो भेड़ियों से भरी दुनिया थी, मैं इससे बचकर कहाँ जाती। जीप मेरे पास आकर रुकी और वो लड़के छलांगे मारकर नीचे उतरे और मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। वो कुल 4 लड़के थे, जिनकी आंखों से खबासत टपक रही थी और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैंने होंठों पर जुबान फेरते अपने दुपट्टे को मजबूती से अपने साथ लिपटाया था।
जिसे एक लड़के ने खींचकर मेरे ऊपर से उतारा तो मैं चीख पड़ी थी। लेकिन इन 4 दरिंदों पर सुनसान सड़क पर रात के इस पहर मेरी चीखों का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ कोई भी नहीं आने वाला मुझे बचाने वाला। लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त कुछ फासले से ढोल की आवाज़ सुनाई दी और मैं ज़ोर से चीखती इस आवाज़ की सिमत भागी थी। वो चारों दरिंदे भी मेरे ताक़ुब कर रहे थे। मैं भागते गिर रही थी, मगर एक ही सोच कि मुझे खुद को बचाना है मुझे फिर से उठ खड़ा किया और मैं मज़ीद तेज़ रफ्तारी से भागने लगी थी। और भागते भागते मैं नवाज़ों के करीब पहुंचने को थी कि इन दरिंदों ने मुझे पकड़ लिया और घसीटकर वापस जीप की तरफ ले जाने लगे। मगर उसी वक्त इनमें से एक के सर पर कोई शय पड़े जोर से लगी और वो चकराता हुआ सड़क पर गिर गया था। बाकी तीनों ने भी मुझे छोड़ा और इस हमला आवर की तरफ बढ़े थे। एकदम मुझे छोड़ने से मैं गिरी थी और मेरा सर सड़क से टकराया था, जिससे खून बहने लगा था। मैं बमुश्किल उठ खड़ी हुई थी और मैंने देखा था कि उसके हाथ में फ्राई पैन है, जिससे वो इन 4 दरिंदों को बेदर्दी से मार रहा है। मेरा सर एकदम से चकराने लगा था और ये चक्कर माथे पर लगी चोट की वजह से नहीं थे, बल्कि उस शख्स का हुलिया देखकर थे जिसने इन दरिंदों को मार भिगाया था। गुलाबी सिलक का चमकता दमकता सूट, गले में सितारों वाला दुपट्टा, कानों में बड़े बड़े झुमके, बालों की लंबी सी चोटी, पैरों में सैंडल और मुंह पर बेतहाशा मेकअप और मर्दाना नकूश। वो कोई ख्वाजा सरा था और उसे देखकर मेरी आंखों के सामने शाहू का चेहरा आ गया, जिससे मुझे नफरत थी और उसकी वजह से हर ख्वाजा सरा से नफरत थी, चाहे उसने मेरी जान ही क्यों ना बचाई हो। ढाल तो मेरी शाहू भी था, लेकिन एक काबिले नफरत शख्स था। इसके पीछे ही उस जैसे 3 और ख्वाजा सराय थे और वो ख्वाजा सरा जिसने मेरी मदद की थी वो आगे बढ़ा और मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ्त करने लगा तो मैंने एक जोरदार चमाटा उसके मुंह पर दे मारा था। सब हक्का बक्का रह गए थे कि मसीहा के साथ ऐसा कोई करता है, लेकिन मेरे अंदर शाहू के लिए नफरत का गुबार भरा हुआ था, जिसे मैं उस पर निकाल तो नहीं सकी थी, लेकिन इस जैसे शख्स पर तो निकाल ही सकती थी। और इसी पर बस नहीं किया, बल्कि मैंने लगातार 3 चमाट उसके मुंह पर मारे थे, जिससे उसका गाल और सुर्ख हो गया था। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उस पर थूकते हुए बोली, जाने तुम जैसों को माएँ पैदा क्यों करती हैं, ना मर्द ना औरत, बस बुज़दिल कमीने से इंसान हो तुम जैसों को पैदा होते ही मर जाना चाहिए, या तुम जैसों के पैदा होने से बेहतर है कि माएँ बे औलाद रहें, कोख खाली रहे। एक झटके से उसका गिरेबान छोड़ती मैं मुखालिफ सिम्मत भागी ही थी कि इस ख्वाजा सरा ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा दिल कुछ पल को काम कर रह गया था। तुम चाहती हो कि कोख खाली रहे तो मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारी कोख खाली रहेगी। तुम बे औलाद ही रहो और फिर तरसती रहो औलाद को, तब तुम समझोगी मखलूक कोई सी भी हो उसका मजाक नहीं उड़ाते, और जो मदद करे उसके तो पाँव धो धो कर पीते हैं। लेकिन तुम एहसान फरामोश लड़की हो तो जाओ, मेरी बद्दुआ है, औलाद को तरसोगी तुम। मैंने गुस्से से ख्वाजा सरा की तरफ देखा और भाग गई और मुसलसल बिना रुके सुनसान सड़क पर भागती ही जा रही थी। मैं किसी गाड़ी से टकराई और फिर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक आरामदेह बिस्तर पर थी। मैंने ज़रा सा आंख खोलकर देखा और फिर एकदम से उठ बैठी। वो एक नहायत ही पुरताश और खूबसूरत कमरा था। मैं डर गई कि जाने मैं कहाँ आ गई हूँ, और इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और दरमियानी उम्र की स्टाइलिश सी औरत अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर शफीक सी मुस्कुराहट थी और आंखों में नरमी। इससे मुझसे मेरी खैरियत पूछी और मेरे पूछने पर कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ, उसने बताया कि मैं देर रात जब वो अपने शौहर के साथ पार्टी से लौट रही थी तो मैं सड़क पर भागते हुए उनकी गाड़ी से टकरा गई थी और वो मुझे घर ले आई थी। 2 दिन बेहोश रहने के बाद मुझे आज होश आया है। इस औरत का लहजा बहुत नरम था। उन्होंने मेरे लिए खाना मंगवाया, अपने सामने खिलाया और फिर मुझे दवाई देकर सुला दिया, और फिर मैं इस घर में ही रहने लगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मुझे अपने पास अपनी बेटी बनाकर रख लिया। मैंने उनसे अपना सारा माजी छुपा लिया और कुछ झूठ मिलाकर माँ की मौत के बाद की कहानी सुना दी। इन आंटी ने बताया कि इनका एक बेटा भी है जिसका नाम सुहेल है और वो हॉस्टल में रहता है और महीने बाद आता है। इस बार जब उनका सुहेल आया तो आंटी ने उससे मेरे मुतालिक बता दिया, और वो भी अपने माँ बाप जैसा था। बहुत अच्छे से उसने मेरा हाल पूछा और मुझसे बात की, और फिर आने वाले कुछ दिनों में हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और अंकल आंटी की ख्वाहिश पर हम दोनों की शादी भी हो गई। मैं शादी के बाद बहुत खुश थी। सुहेल मुझसे बहुत प्यार करता था और उससे भी ज़्यादा अंकल आंटी मुझसे प्यार करते थे। मैं इन खुशियों में खोकर ख्वाजा सरा की इस बद्दुआ को भूल गई
لیکن ایک دن وہ بددعا یاد آ گئی، تب جب شادی کے 2 ماہ بعد آنٹی نے باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھا کہ میں خوشخبری کب سنا رہی ہوں۔ سہیل نے تو اس وقت آنٹی کو ٹال دیا، لیکن میرے کانوں میں وہ بددعا ہر وقت گونجنے لگی اور میں بہت ڈر گئی، کیونکہ میں نے سنا تھا خواجہ سراؤں کی بددعائیں لگتی ہیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور آنٹی کے سوالات بڑھتے گئے۔ 1 سال گزرا، پھر 2 اور اب پورے 3 سال ہو گئے تھے میری اور سہیل کی شادی کو، لیکن ہم ابھی تک بے اولاد تھے اور میں سمجھ چکی تھی کہ اس خواجہ سرا کی بددعا ہی ہے جس نے میری مدد کی تھی اور میں نے اس سے بے عزت کیا تھا۔ خواجہ سرا کی بددعا مجھ پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ میں سوتے جاگتے ڈرنے لگی تھی، اور اگر سچ میں میری کوئی اولاد نہ ہوئی، سچ میں اگر میری کو خالی رہ گئی، تو یہ سب سوالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ اب میں خواب میں بھی ڈرنے لگی تھی اور آدھی راتوں کو اٹھ بیٹھتی تھی۔ سہیل مجھے تسلی دے کر پھر سے سلا دیتے تھے، اور پھر مجھے صبح جاگنے کے بعد سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا تھا کہ تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب اسی گھر میں ملیں گے۔ اور میں پریشان کہ یہ کس نے لکھ کر رکھا ہوگا اور کون جانتا ہوگا کہ میرے اندر سوالات کی بھرمار ہے۔ میں تلاش میں ہوں اس خواجہ سرا کے جس کی بددعا کی کاٹ مجھے مل سکے اور میری شادی شدہ زندگی مکمل ہو سکے۔ اور پھر ایسا ہی ہونے لگا کہ روز بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر مجھے وہی کاغذ ملنے لگا جس پر ایک ہی بات لکھی ہوتی تھی کہ تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب اسی گھر میں ملیں گے۔ اور میں سارا دن ماری ماری پورے گھر میں پھرتی رہتی کہ آخر میرے سوالوں کے جواب ہیں کہاں اور کیسے ملیں گے۔ اور تبھی مجھے پتا چلا کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے پر روز جو لائن لکھی ہوتی ہے وہ سہیل یعنی کہ میرے شوہر لکھتا تھا، اور میں حیران کہ سہیل کو کیسے پتا کہ میں کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ سہیل میرے بارے میں سب جان چکے ہیں، اور میں نے سارے سوالات کے جوابات سہیل سے پوچھنے کا سوچا اور سہیل کے آفس سے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن شام کو انکل اکیلے واپس آئے تھے کیونکہ سہیل ارجنٹ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا چکے تھے۔ میں جو سارا دن ان کا انتظار کر رہی تھی مایوس ہو کر بیٹھ گئی، اور تبھی آنٹی آئی اور مجھے تیار ہونے کا کہا اور مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک لے آئیں، اور ایسے ہی ہر مہینے مجھے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھیں جہاں میرے اندر ماں بننے کی تمنا پنپ رہی تھی، وہیں وہ بھی دادی بننا چاہتی تھیں۔ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھلانے کا ان کا بھی بڑا شوق تھا جو صرف میری وجہ سے پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بہت اچھی تھیں، مجھے ساسوں کی طرح تانے نہیں دیتی تھیں، لیکن اپنے بیٹے کے بچوں کو دیکھنے کی خواہش بہت زیادہ تھی ان میں۔ اور اس دن بھی ہم کلینک سے مایوسی لوٹے تھے۔ رپورٹس ہمیشہ کی طرح صاف تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی گود خالی تھی تو وجہ وہی بددعا تھی جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک نہ سہیل تھے اور نہ ہی مجھے کوئی کاغذ ملا تھا۔ پھر 2 ہفتے بعد جب سہیل لوٹے تو سائڈ ٹیبل پر وہی کاغذ کا ٹکڑا پھر سے ملنے لگا، اور میں نے جب سہیل سے سوال کیا تو وہ انجان بن گئے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کچھ بھی بتانا چاہتے تھے نہ بتائیں گے۔ تو میں نے خود اپنے سوالات کو اس گھر میں تلاشنا شروع کر دیا۔ ایک دن آنٹی نے مجھے اسٹور روم کی صفائی کروانے کا کہا تو میں 1-2 ملازمہ کو لے کر اسٹور روم میں آئی اور صفائی شروع کروائی۔ صفائی کے دوران جب ڈبے اتارے جا رہے تھے تو تبھی ایک ڈبے سے جھانکتے دوپٹے پر میری نظر پڑی۔ وہ دوپٹہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ میں نے ملازم کو کہہ کر وہ ڈبہ اتروایا اور اسے کھولا تو اس کے اندر سے جو نکلا میں کام کر رہ گئی۔ ڈبے کے اندر وہی کپڑے، دوپٹہ، جیولری اور سینڈل تھے جو اس رات مجھے بچانے والے خواجہ سرا نے پہن رکھے تھے۔ میرے ارد گرد آندیاں چلنے لگی تھیں کہ وہ لباس یہاں کیسے، اور کیا یہ میرے سوالات کا جواب ہے؟ یہ لباس یہاں تھا تو یہ کس کا لباس تھا؟ مجھے اس سب کے اشارے سہیل کی طرف سے مل رہے تھے، تو کیا یہ لباس سہیل کا تھا؟ کیا وہ خواجہ سرا سہیل ہے؟ کیا سہیل خواجہ سرا ہے؟ اس لیے بچے نہیں ہو رہے؟ کیا ہم اس لیے اب تک بے اولاد ہیں؟ مگر یہ بات بھی ماننے والی نہیں تھی کہ میں نے 3 سال گزارے تھے سہیل کے ساتھ۔ میں جانتی تھی کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ سہیل مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ان سب سوالوں سے میرا سر پھٹنے لگا اور میں چکرا کر وہیں اسٹور روم میں ڈھیر ہو گئی۔ ملازموں نے دیکھا تو فوراً آنٹی کو بتایا۔ آنٹی نے ڈاکٹر کو بلایا جس نے آ کر میرا چیک اپ کیا اور خوشخبری سنا دی کہ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ اتنی خوشی کی خبر تھی کہ ہم سب پھولے نہ سما رہے تھے۔ آنٹی نے جلدی سے انکل اور سہیل کو فون کر دیا اور وہ بھی خوشی سے بےتاب فوراً گھر کے لیے نکلے تھے۔ میں خوش تھی، لیکن وہ خواجہ سرا کون تھا؟ یہ ایک معمہ بنا ہوا تھا میرے لیے۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھی
और दराज से कुछ निकाल रही थी कि मेरे हाथ गोलियों के कुछ पैकेट्स लगे, जिससे सारी गोलियां ख़त्म थीं। ये दवाई ना मैं खाती थी, ना मैंने सुहेल को खाते देखा था। फिर ये किसकी दवाई थी? मैंने गोलियों के पैकेट पर नाम देखा और फ़ौरन इसे इंटरनेट पर सर्च किया, और जो नताइज आए मेरा सर घूम कर रह गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है? सुहेल ऐसा भी कर सकता है? वो गोलियां ही थीं जो वजह बन रही थी हमारी औलाद ना होने की, और अब शायद उसने दवाइयाँ खाना छोड़ दी थीं। तभी खुदा ने हमें खुशखबरी सुना दी थी। सुहेल ऑफिस से वापस सीधा कमरे में आया। वो बहुत खुश था और मैं बहुत गुस्सा थी। मैंने खींचकर थप्पड़ सुहेल के मुंह पर मारा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरत न आई। वो मुस्कुराकर मुझे देखता रहा तो मैंने वो कपड़े और गोलियां उसके मुंह पर मार दी, और फिर उसने इकरार कर लिया कि उस रात ख्वाजा सरा वही बना हुआ था और उसके दोस्त थे। वो हॉस्टल से एंजॉय करने निकले थे और एडवेंचर करना उनका शौक था, इसलिए ख्वाजा सरा का गेटअप लिया और फिर मेरे पुकारने पर मदद के लिए आए थे। और सुहेल को मैं पहली नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन फिर मेरे थप्पड़ और बातों ने सारी अकल दुरुस्त कर दी थी, और तभी उसने फैसला किया कि मेरी गलत फहमी दूर करेगा, और इसके लिए उसने अपना भी नुकसान किया था। पूरे 3 साल वो बच्चों के लिए तरसता रहा। मैं उससे नाराज़ थी, लेकिन उसकी वजह से मुझे इज्जत की ज़िंदगी मिली थी। मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती थी, और जब मैंने उससे अपने मुत्तलिक बताना चाहा तो उसने मुझे चुप करवा दिया और बताया कि अंकल आंटी और वो पहले से सब कुछ जानते हैं, और मैं तो इनकी इतनी मोहब्बत की मकरूज़ हो गई कि मैं इतनी मोहब्बत के लायक नहीं थी, लेकिन खुदा ने मुझे नवाजा था। सुहेल के कुशादा सीने पर सर रखे मैंने दिल से खुदा का शुक्र अदा किया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।